Greetings everyone. In this lecture we will discuss about free radicals. So what are free radicals? Atom or group of atoms having unpaired electrons. For example, this is chlorine free radical, this is methyl free radical. They are formed by the homolytic fission of the bond. Homolytic fission means अगर बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है तो both the electrons are carried equally by the separating atoms. So यहाँ पे homolytic fission होगी which can be shown by single headed arrow. So one electron is carried by this chlorine atom, one electron is carried by this chlorine atom, and we will get two chlorine free radicals. This is benzoyl peroxide. ये benzoyl group है, उसमें O2 डाल दिया तो this is benzoyl peroxide. Benzoyl peroxide की भी homolytic fission होगी and we will get benzoyloxy free radicals. They are highly reactive species, very short lived due to the tendency of odd electron. यहाँ पे एक odd electron है, इसकी हमेशा टेंडेंसी रहेगी कि पेयर अप होने की कोशिश करेगा. So that's why they are highly reactive. Also they have sp2 hybridization. Because of sp2 hybridization it will form 3 sp2 hybrid orbitals, and unhybridized p orbital will accommodate the single odd unpaired electron. So classification, they can be classified as follows. We have this simple methyl free radical, इसका एक हाइड्रोजन हटा के हमने CH3 ग्रुप लगा दिया. So this is जिस कार्बन पे an odd electron है that is connected to one carbon atom. This is primary free radical which is also called as ethyl free radical. इसका एक हाइड्रोजन हटा के हमने एक कार्बन मिथाइल ग्रुप और लगा दिया. सो जिस कार्बन पे ऑड इलेक्ट्रॉन है दैट इज कनेक्टेड टू टू कार्बन एटम. दिस इज सेकेंडरी फ्री रेडिकल ऑल्सो कॉल्ड एज आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल. इसका एक हाइड्रोजन हटा के हमने एक मिथाइल ग्रुप और लगा दिया. सो दिस इज टर्शरी फ्री रेडिकल जिस कार्बन पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है दैट इज कनेक्टेड टू थ्री कार्बन एटम. दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल. सो दिस स्टेबिलिटी ऑर्डर इज टर्शरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल इज मोस्ट स्टेबल, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन सिंपल मिथाइल फ्री रेडिकल. दिस कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन. So let us consider these structures one by one. In methyl free radical there is no hyperconjugation because unhybridized p orbital is available but there is no CH bond in the neighborhood. Then we have primary free radical, that is ethyl free radical. In primary free radical this is the unhybridized p orbital this carbon has, and साथ में CH bond है तो हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है. येस, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करेंगे. इस बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एक इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन पे रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन जो है इस कार्बन पे जो होगा इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा. सो वी विल गेट दिस स्ट्रक्चर. नाउ if one hydrogen can give one hyperconjugative structure, तीन हाइड्रोजन है, we have 3 alpha hydrogen atoms, so we will get 3 hyperconjugative structures as follows. Likewise इस हाइड्रोजन की वजह से hyperconjugative structure मिलेगा, likewise इस हाइड्रोजन की वजह से. Now let us consider isopropyl free radical which is our secondary free radical. इसमें देखो alpha hydrogen, so we have total 6 alpha hydrogen atoms, so we will get 6 structures which is more than primary. तो secondary में hyper conjugation ज़्यादा हो रही है which is more stable. tertiary में देखो this is tertiary butyl carb anion, this is tertiary butyl free radical. We have 9 alpha hydrogen atom, 3 3 6 3 9, so we will get 9 hyper conjugative structures. तो सबसे ज़्यादा डिस्पर्सल ऑफ चार्ज टर्शरी रेडिकल में होगी. सो टर्शरी विल बी मोस्ट स्टेबल एज कम्पेयर टू सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन सिंपल मिथाइल फ्री रेडिकल. Also resonance, it always increases the stability of free radical. Why? Let us consider this allyl carbon ion. allyl carbon ion में ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है सिंगल डबल, इस इलेक्ट्रॉन के दो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस बॉन्ड के, एक इलेक्ट्रॉन जो है इस कार्बन पे मूव कर जाएगा तो इसका एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे रह जाएगा तो सिंगल ऑड इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा तो वी विल गेट दिस स्ट्रक्चर. दिस इज मिथाइल फिनाइल फ्री रेडिकल, दिस इज बेंजाइल फ्री रेडिकल और मिथाइल फिनाइल फ्री रेडिकल. अब यहाँ पे भी रेजोनेंस पॉसिबल है. येस, ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रह जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन जो है इस इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाएगा, इस कार्बन पे ये इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा. सो वी विल गेट दिस स्ट्रक्चर. लाइकवाइज ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है, इसका एक इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाएगा एंड एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ रह जाएगा. सो वी विल गेट दीज 3 स्ट्रक्चर. अब इसका एक हाइड्रोजन हटा के अगर हम एक बेंजीन फिनाइल ग्रुप और लगा दें तो वी विल गेट डाई फिनाइल मिथाइल फ्री रेडिकल. एक फिनाइल ग्रुप की वजह से 3 स्ट्रक्चर्स हैं तो 2 फिनाइल ग्रुप की वजह से वी विल गेट 6 स्ट्रक्चर्स. लाइकवाइज एक हाइड्रोजन हटा के अगर हम और फिनाइल ग्रुप लगा देंगे सो वी विल गेट ट्राई फिनाइल मिथाइल फ्री रेडिकल. सो आउट ऑफ दीज ट्राई फिनाइल मिथाइल फ्री रेडिकल में सबसे ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे. दिस विल बी मोस्ट स्टेबल एज कम्पेयर टू डाई फिनाइल मिथाइल फ्री रेडिकल जिसमें कि 6 स्ट्रक्चर्स हैं विच इज़ फर्दर मोर स्टेबल देन सिंपल मिथाइल फिनाइल फ्री रेडिकल और बेंजाइल फ्री रेडिकल जिसमें कि 3 स्ट्रक्चर्स हैं. थैंक यू.